Hello friends, I see Rohan Pandya. Welcome you all on my YouTube channel. First of all, I would like to thank all of you for showing tremendous love and support in my previous two videos. If we talk about evaluation of forensic audit in India, then forensic audit is not modern concept. It is since ancient Maurya, that is Chandragupta Maurya's administration. Chanakya, at that time they are calling them Kautilya. Kautilya was the first one who has visualized the importance of the forensic audit. So Arthashastra, he has written Arthashastra. So Arthashastra is not only historical interest, but it is also manual for economic administration of the country. So Chanakya was one who has recognized the need of forensic audit 2400 years ago. So he has mentioned 38 ways of embezzlement, and this is also relevant now in the corporate world. So fund diversion, misappropriation of fund, cheating, bribery, all are right now new era of competition in the corporate world. If you don't have proper mechanism, then it will be adding fuel to the fire. Okay. So if assume that forensic audit also not give result based on the expectation, then it is very big reason to worry. Then society, government, stakeholder are the most vulnerable to it. Let me tell you something about our institute. Our Institute of Chartered Accountants of India. Institute of Chartered Accountants of India, which is set up by the Act of Parliament way back on 1st July 1949. And you will be aware that Constitution of India was adopted in 1950. Now pertinent question that arises, that what prompted the government to set up an institute while most important document of our democracy, that is Constitution of India, was not adopted? The answer is very simple, very candid and very forthcoming, because they want strong and disciplined professional who can thrive the country from the economic challenges and financial confusions and enhance the confidence among the stakeholders and investors. But now, if you turn on news and read newspaper, there are chances that you will find that news related to increase of NPS and increase of frauds and increase of crimes. So fund diversion, misappropriation of fund, manipulation of books about cheating, bribery are never-ending battle. They are at the topmost right now. Okay, let me give you some statistics. As per the financial stability report of which is issued by the Reserve Bank of India, we state that for the financial year 18-19, that is half year ended on September 2018, fraud cases amounting to rupees 1.13 lakh crore. मैं करोड़ बोल रहा हूँ, लाख नहीं बोल रहा हूँ, 1.13 lakh crore. If we compare the same with the previous whole year, then it was around 70,000 crores. So you will witnessing that how it is spiking. Report further state that high value fraud, that more than 50 crores. I also told in my previous videos that whenever any NPA amount is greater than 50 crores, then it is required to be investigated by the forensic auditor. So high value fraud, that is greater than 50 crores, also rise. That around 398 cases for the half year ended on 2020 amount to rupees 1.1 lakh crore. And if we compare the same with the previous fiscal, that is 18-19, the cases was around 300 cases and amount was rupees 60,000 crore. So you are witnessing how it is rising. Okay, so अगर हम लोग NPA की बात करें, इंडिया के NPA की बात करें, इंडिया का NPA अराउंड 7 लाख करोड़ के आजू बाजू है, 7 लाख करोड़ के आजू बाजू है, विच इज़ अराउंड 9.8% ऑफ द टोटल एडवांसेस ग्रॉस NPA. अब 7 लाख करोड़ के सामने 1 लाख करोड़ का अपना ये फ्रॉड केसेस है, 20% के आजू बाजू ये होता है. सो ये भी बहुत बड़ा परसेंटेज है. इट इज़ ऑल्सो बिग परसेंटेज. Okay, so I also told in my previous videos that there are mainly two reasons for account to become NPA. First reason is economic slowdown. Right now we are witnessing the same. We are means aviation industries, hotel industries are the most vulnerable to it. Okay, so we can understand, okay, if NPA of the aviation or hotel industry has done, so we can restructure the account. So we can reschedule the repayment schedule and terms of the sanction and all that, we can rearrange it. But what about the fraud cases, willfully defaulted on, that fund has been diverted from the system, it is out from the system, you cannot take back it. Suppose any bank has granted CC of 100 crores to you. Okay, so you have brought raw material, okay, but due to economic slowdown you are not able to sell it, so the 100 crores of stock are still in your godown. Okay, so sooner or later they will be realized in the case. Okay, so no any big reason to worry there. But when you have diverted 100 crores of fund
for not buying stocks, but you have diverted for related party transaction and siphoned of the money, then it is good. It may not be recovered. But a few months ago, RBI has also come up with another measure that all the NPA should be transferred to the sale to be sold to the asset reconstruction company. एक asset reconstruction company को इन्होंने बनाया है कि जो भी बैंक के NPA वो आप वहाँ जाके सेल कर सकते हैं. अब मेरा पर्सनल ओपिनियन देखा जाए तो ये खाली एक मियरली बुक एंट्री है, इससे कोई NPA रिकवर तो नहीं होने वाला है. अगर पैसा मैं उनको नहीं दे रहा हूँ तो उनको भी नहीं दूंगा, मैं बैंक को नहीं दे रहा हूँ तो उनको क्या दूंगा. मैं बोल रहा कि NPA को बेटर मैनेज कर सकते हो, तो ये लोग कर ही रहे हैं. सरफाइसी और IBC लेके आए आप, वहाँ पे तो चल ही रहा है, बट आप ये भी लेके आए, गुड. उन्होंने भी कुछ सोचा होगा इसके बारे में, ये थॉट प्रोसेस हुई. तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मियरली यहाँ से उठा के वहाँ पे, तो मेरा NPA मेरे बुक से हट के वहाँ पे चला जाएगा और मेरे में वो एडवांसेस ना दिख के अभी मेरा इन्वेस्टमेंट दिखेंगे, दैट इज सिक्योरिटी रिसिप्ट. मैं अगर NPA वो कंपनी को बेचता हूँ तो वो सामने वाली कंपनी को पैसा नहीं, सिक्योरिटी रिसिप्ट देंगी, और जब भी NPA का रिकवरी होगा वो मेरे को पास ऑन करते रहेंगे. तो ये अरेंजमेंट, ये एक प्रकार का अरेंजमेंट है. ओके. एक रिसेंट सर्वे कंडक्टेड बाय PwC, एक PwC ने भी एक सर्वे कंडक्ट किया. सो उसमें ऐसा रिजल्ट आया कि जो कंज्यूमर फ्रॉड होते हैं ना, जो फ्रॉड कमिटेड बाय द कंज्यूमर्स आर द टॉप मोस्ट. सेकंड वाज मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द सेकंड टॉप मोस्ट, एंड असॉर्ट मिसअप्रोप्रिएशन आर द थर्ड मोस्ट. Same kind of research has been done by the global accounting firm, that is Ernst & Young. They have taken samples from Middle East, Africa and India and then analyzed the result. That 77% of their samples could justify, in 77% of their company could justify manipulation of accounting record for survival of the company, and 1 out of 5 deliberately missed the financial records for the better survival for their company. So but thing is that forensic audit not be replaced with the routine audit, but yes, failure of statutory audit and routine audit can give rise to the forensic audit. Okay, so okay, now we are moving to our case study. I have taken Nakoda Limited for our analysis, so let's enjoy. So I have taken Nakoda Limited for our case analysis. So let me give you some background of this case. This case was in limelight in 2018, where Canara Bank has made allegation on the company. That company has, based on the fraudulent document and false document and bogus sales and purchase invoices, they have defrauded to the bank to the tune of 2,100 crore rupees. Okay, so company was basically textile, belongs to the textile industry, and company was Surat based. So in Surat, you'll find that there are two businesses are there. Mainly diamond and textile. Okay, so company was based to Surat, and company was enjoying fund based and non fund based facility. Fund based means where bank give you money, then it is fund based. Where bank give you guarantee, then it is non fund based. Like CC, OD, term loan are the fund based, and LCBG, that is letter of credit and bank guarantee, are the non fund based. Okay, and Canara Bank was leading consortium of 13 bank. Consortium means कि कोई बड़ा लोन होता है ना, कि समझो 500 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ का चाहिए, तो एक बैंक अकेला रिस्क नहीं लेता उसमें. समझ लो एक बैंक ने 10,000 करोड़ दे दिया और उसने पैसा मार लिया, तो क्या करते हैं, कंजोर्शियम सब लोग थोड़ा थोड़ा देते हैं कि कैनरा बैंक थोड़ा देंगी, HDFC थोड़ा देंगी, एक्सिस SBI थोड़ा देंगी. सो ऐसा करके कंजोर्शियम बनाते हैं. कंजोर्शियम का एक लीड बैंक होता है कि वो सब ज़्यादा उसका मैनेज कर पाएंगी उसको. और कंपनी ने कुछ लेटर ऑफ क्रेडिट डिवोल्ट किया था. डिवोल्टमेंट क्या होता है, मैं आपको कपल ऑफ स्लाइड में आपको समझाता हूँ कि, और उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया था 2,100 करोड़ का, तो उनको NPA कर दिया था, उन पर एलिगेशन लगाया गया, तो उन्होंने कंप्लेंट फाइल किया. तो 3 जो मेजर इनके एलिगेशन लगे थे, एक तो फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट के बेस पे लेटर ऑफ क्रेडिट लिया, फिर उन्होंने बोगल परचेस एंड सेल्स किया थ्रू सर्कुलर ट्रेडिंग. सर्कुलर ट्रेडिंग में आपको समझाता हूँ क्या होता है, एंड देन विंडो ड्रेसिंग किया था उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. तो 1 by 1 हम लोग डिस्कस करते हैं इसको. तो लेटर ऑफ क्रेडिट का एक विदाउट डिवोल्वमेंट नॉर्मल ट्रांजैक्शन कैसा होता है कि सपोज आप ए लिमिटेड हो, सपोज यू आर ए लिमिटेड. ओके, आपको कोई रॉ मटेरियल चाहिए या तो कोई गुड्स इंपोर्ट करना है, ठीक है, तो आप सामने वाली जो काउंटर पार्टी है, सपोज USA में बैठे हो सामने काउंटर अपना एक्सपोर्टर, तो वहाँ से अपन परचेस ऑर्डर डालेंगे वहाँ पे. अब वो अपने को डायरेक्टली गुड्स तो भेजेगा नहीं, कि वो बोलेंगे कि तुमने पैसा नहीं दिया, तो बोलेंगे कि तुम एक काम करो लेटर ऑफ क्रेडिट दो, तो ही हम लोग वहाँ से गुड्स भेजेंगे. तो भाई हमको तो गुड्स चाहिए, तो हम गए बैंक के पास, कि सपोज कोई बैंक SBI के पास गए हम लोग कि भाई हमको लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवाओ. तो
बैंक भी बोलेंगे हम क्यों आपको दे, आपको कुछ कोलेटरल रखना पड़ेगा, तो हम लोग कुछ कोलेटरल रखेंगे और मार्जिन मनी रखते हैं। मार्जिन मनी क्या होता है कि समझ लो 100 करोड़ का आपको बैंक गारंटी चाहिए, तो उसके सामने 15% वेराई करता है बैंक टू बैंक, 15% एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, तो 15 करोड़ आपको एफडी रखनी पड़ेगी, एफडी फिक्स डिपॉजिट आपको वहाँ पे रखनी पड़ेगी। वो अपने को एलसी इशू करेंगे। एलसी क्या होता है, स्टैम्प पेपर पे सब लिखा होता है उसमें कि ये मेरी टर्म्स है, ये टर्म्स कंप्लाई होता है तो ही मेरी एलसी वैलिड है। उसमें फिर वो जो गुड्स अपने को इंपोर्ट करना है उसका भी डिस्क्रिप्शन रहता है कि ये गुड्स के लिए वैलिड है। वो एलसी इशू हो गई। अब ये जो एसबीआई होगी वो सामने वाली जो एक्सपोर्टर है उसकी बैंक को स्विफ्ट के थ्रू, स्विफ्ट एक मैसेजिंग टूल है, इंटरनेशनल मैसेज के लिए स्विफ्ट यूज़ होता है, तो स्विफ्ट के थ्रू वो सामने वाली कंपनी को इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई ये जो पर्सन है आपकी बैंक का, उसके नाम पे बैंक गारंटी इशू हो चुकी है। अब वो सामने वाला जो एक्सपोर्टर है वो उसको मिल गया बैंक गारंटी, वो अपने को गुड्स भेज देंगे। गुड्स हम लोग करेंगे, वो डॉक्यूमेंट ये बैंक को भेज देंगे, परचेस के डॉक्यूमेंट वो सब, और हम लोग यहाँ से छुड़वा लेंगे बैंक डॉक्यूमेंट सब, एक हो जाएगा नॉर्मल परचेस खत्म हो जाएगा। गुड्स आ गए, हमने यूज़ कर लिया। अब 90 डेज़ का पेमेंट टर्म्स होता है, सपोज 120 डेज़, 90 डेज़, 150 डेज़ जो भी होता है। 90 डेज़ के बाद अपने को पेमेंट करना है वो सामने वाली पार्टी को, तो 90 डेज़ पे हम लोग पेमेंट कर देंगे वो सामने वाली पार्टी को। अगर नहीं हमने नहीं किया तो बैंक अपना अकाउंट डेबिट मार के वहाँ पे पेमेंट कर देंगी और एलसी वैसे क्लोज हो जाती है। वो एक नॉर्मल एलसी का रूटीन ट्रांजेक्शन होता है। अब डिवॉल्वमेंट क्या होता है, वो डिवॉल्वमेंट के साथ एलसी का ट्रांजेक्शन कैसा होता है वो बताता हूँ आपको मैं। डिवॉल्वमेंट क्या होता है कि एलसी ओपन हो गई, स्विफ्ट के थ्रू हमने बता दिया वहाँ पे, ये एसबीआई ने उनको बता दिया, ठीक है, उसने गुड्स डिस्पैच कर दिया अपने को, हो गया। अभी 90 डेज़ में अपने को पेमेंट करना है, ठीक है। अब 90 डेज़ में अपने पास पैसा ही नहीं है, अपने अकाउंट में पैसा नहीं है, अब उन्हें दे नहीं पा रहे, तो अभी बैंक को तो देना पड़ेगा क्योंकि बैंक ने अंडरटेकिंग लिया अपना कि हम नहीं करेंगे तो उनको तो करना ही है। तो बैंक ने पैसा दे दिया उनको, तो उसको बोलते हैं डिवॉल्वमेंट। अब ये जो एलसी पहले नॉन फंड बेस हुआ करती थी, जो कंटिजेंट लायबिलिटी में खड़ी थी नीचे ऑफ द बैलेंस शीट आइटम, या तो अब वो फंड बेस हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे बैंक का एक्चुअल पैसा गया है, ठीक है। तो बैंक उसको डिवॉल्वमेंट बोलते हैं। चलो आपको 2 मिनट और एक्सपोर्ट का भी बता देता हूँ कि एक्सपोर्ट में ये ट्रांजेक्शन कैसा हो। सपोज यू आर एक्सपोर्टर, आप एक्सपोर्टर हो, तो क्या होता है, एक्सपोर्टर हो तो आपको एक्सपोर्ट वहाँ से परचेस ऑर्डर आपको आया और आपको अभी एक्सपोर्ट करना है गुड्स, तो आप भी ऐसे नहीं कर दोगे, वहाँ अपना वो अपने से मांग रहे तो हम भी उनसे मांगेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट, तो वो भी अपने बैंकर को बोल के लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवाएगा अपने नाम पे। तो हम लोग क्योंकि पैसा तो श्योर आना ही, अगर वो नहीं देंगे तो उनकी बैंकर दे देंगी, एलसी इसलिए तो यूज़ होती है। तो हम एक्सपोर्ट कर देंगे गुड्स, ठीक है, और एलसी अपने पास आ गई तो अभी हमको क्या, हमने को पैसे की अभी ज़रूरत है क्योंकि वो पैसा 90 डेज़ के बाद आने वाला है, बट अपने को पैसा अभी चाहिए। कोई कंपनी, सपोज आप ए लिमिटेड हो, आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया और उसका पैसा 90 डेज़ के बाद आ रहा है, पर आपने को पैसा अभी चाहिए, तो आप क्या करोगे, बैंक के पास जाओगे और एलसी को डिस्काउंट करवा दोगे कि एलसी को डिस्काउंट, क्योंकि बैंक को भी पता है कि पैसा श्योर आना है क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट वाला ट्रांजेक्शन है। नॉन एलसी में थोड़ा रिस्की होता है, नॉन एलसी ट्रांजेक्शन का भी बिल डिस्काउंटिंग होता है, तो वैसे करके आप एलसी को डिस्काउंट करके पैसा ले सकते हो, 90 डेज़ के बाद वो पेमेंट आ जाएगा वहाँ पे। तो ऐसे एक्सपोर्ट का एक ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। अभी इन्होंने क्या किया, अपने सीए की हेल्प से, चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प से क्या किया कि इन्होंने कुछ बोगस कंपनीज एस्टैब्लिश की। बोगस कंपनी क्या होता है कि 4-5 कंपनीज ऐसे एस्टैब्लिश कर दी। क्या करते हैं, वो जो परचेस एंड सेल्स होता है ना, वो जेन्युइन तो होता ही है, अदरवाइज कंपनी लिस्टेड ऐसे नहीं होती है, जेन्युइन तो होता है, पर कुछ जो ट्रेडिंग सेल्स होता है ना, वो क्या होता है कि यहाँ से ये मेरी जो ग्रुप कंपनी वहाँ से मैं लूँगा और दूसरी ग्रुप कंपनी को सेल कर दूंगा मैं, इसको सर्कुलर ट्रेडिंग होता है कि तू मेरे को बेच, मैं तेरे को बेचता हूँ, ओके। तो वैसे सर्कुलर ट्रेडिंग करके मेरा टर्नओवर में बढ़ा सकता हूँ, उनका भी बढ़ेगा, मेरा भी बढ़ेगा, सबका बढ़ेगा, वैसे सर्कुलर ट्रेडिंग के थ्रू मेरा बूस्ट कर सकता हूँ मैं। तो इन्होंने कुछ ऐसी कंपनी एस्टेब्लिश किया और एक पहले ये लोग क्या करते हैं ना कि कोई भी बैंक को चीटिंग करनी होता है ना, तो एक पहले ट्रांजेक्शन में नहीं करते, पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं कि ठीक है। तो अभी उससे क्या फ़ायदा होता है कि कोई डॉक्यूमेंटेशन में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है कि बैंक उतना नहीं होता है कि भाई पैसा तो आने ही वाला है, कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरा ट्रस्ट है, 5 साल का मैंने ट्रस्ट है कि मैं पहले पैसा टाइम पर दिया है, सब जेन्युइन है मेरा। तो वो लोग क्या करते हैं कि कुछ ट्रांजेक्शन जेन्युइन करते हैं, बाद में कुछ बड़ा सा झटका दे देते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि वो कंपनी से परचेस ऑर्डर लिया, जो मेरी ग्रुप कंपनी थी उससे परचेस ऑर्डर लिया। अब वो कंपनी ने बोला कि मुझे एलसी चाहिए, एलसी के बिना मैं तुमको रॉ मटेरियल दूंगा। तो ये हम लोग गए बैंक के पास कि बैंक एलसी दे दो, तो बैंक तो नॉर्मली जो एलसी इशू करता है, क्योंकि पिछले बार भी करते तो अभी भी कर दी इन्होंने, एलसी इशू कर दी इन्होंने बहुत सारी, एक ट्रांजेक्शन नहीं बहुत सारे ऐसे परचेस होते हैं, ऐसे ही एलसी इशू कर दी उन्होंने। एलसी इशू हो गई, गुड्स आ गए। अब 90 डेज़ के बाद, 90 डेज़ एग्जांपल के लिए रहा हूँ, 90 डेज़ के बाद अपन ने उनको पेमेंट नहीं किया, ठीक है, तो बैंक ने वो कंपनी को पेमेंट कर दिया। समझना, बैंक ने किसको पेमेंट कर दिया, 90 डेज़ खत्म, एलसी डिवॉल्व हो गई तो पेमेंट बैंक करेगा। अभी बैंक किसको किया, वो जो कंपनी से मैंने इंपोर्ट किया, परचेज़ किया था, वो कंपनी कौन है, वो कंपनी तो मेरी ही है, फ्रॉडुलेंट कंपनी है वो कंपनी ने वो पैसा घुमा दिया।
90 डेज़ के बाद मुझे पेमेंट करना था वो कंपनी को, ठीक है, नहीं कर पाया मैं, तो बैंक की गारंटी थी तो बैंक को तो करना ही पड़ेगा क्योंकि एलसी वाला ट्रांजेक्शन था। अब क्या हुआ कि वो पैसा उन्होंने वो कंपनी को दे दिया। अब वो कंपनी तो मेरी कंपनी थी, फ्रॉडुलेंट कंपनी, तो वो पैसा वहाँ से मैंने डाइवर्ट कर दिया, रिलेटेड पार्टी का लोन पेमेंट करके वो साइफन ऑफ कर दिया, सिस्टम से बाहर लेके गया मैं पैसा। तो वैसे उन्होंने ना 900 करोड़ की 828 करोड़ की टोटल एलसीज थी, कुछ 200 के अराउंड एलसीज थी टोटल, वो डिवोल्ट कर दी, ठीक है। तो ये एक चीज़ हुई कि और जो परचेस जो था ना वो भी जेन्युइन नहीं था, मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताता हूँ। अब आप ये एनालिसिस कर सकते हो, ये कुछ ये मैंने फिनेंशियल से उठाई ये चीज़ ये कि आप समझ लो, आप पहले क्या था, जीएसटी तो अभी आया, पहले वेट एक्साइज था, ओके। तो एक्साइज समझ लो आप 10% अपना वेट का रेट है, ठीक है। तो आपका सेल्स अगर 100 का रहेगा तो 10 रुपये आपका वेट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि 2009 से लेकर 2013 तक, पहले ऊपर वाले उसमें, कि जो मेरा एक्साइज और वेट का अमाउंट है ना वो डिवाइडेड में ग्रोस सेल्स करूँगा तो मेरा रेट तो वेट का रेट तो उतना ही आना चाहिए ना मेरा, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस थोड़ा बहुत चलता है पर परचेस रिटर्न सेल्स रिटर्न किया या तो कुछ ऐसा, बाकी समझ सकता हूँ। बट ये देखो अब कितना वेरिएशन आ रहा है, 4.2%, 4.8%, 6.2, 7.5, 8.5। ये तभी हो सकता है तो मेरा रेट इंक्रीज़ हुआ है, बट वो साल में मैंने जाके देखा कि वेट का रेट टेक्सटाइल के लिए सिमिलर था, चेंज नहीं हुआ, तो इसमें कुछ अर्ली वार्निंग सिग्नल है यहाँ पे कुछ हो सकता है। दूसरी चीज़ ये लोग क्या करते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है ना, उनका ट्रेडिंग सेल्स भी होता है कभी कभी। ट्रेडिंग सेल्स क्यों करते हैं ना, उसके मतलब हो सकता है कोई भी रीज़न है, ऐसा नहीं बोल सकते तो फ्रॉड है। अगर कोई प्रॉफिट, अभी समझ लो कोई, मैं बोलता हूँ अर्निंग वार्निंग सिग्नल कहाँ से मिलता है अपने को, ठीक है। अब समझ लो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, और वो कंपनी का समझ लो 10 करोड़ का प्रॉफिट है, 100 करोड़ के टर्नओवर के सामने 10 करोड़ का प्रॉफिट है, ठीक है। अब उसमें से आपने ट्रेडिंग को अलग किया कि ट्रेडिंग के हिसाब से कितना प्रॉफिट आ रहा है। आप सोचोगे भाई 10 करोड़ को मेरा ट्रेडिंग सेल से आ रहा है, अगर ट्रेडिंग सेल से ही मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ तो मुझे मैन्युफैक्चरिंग की क्या ज़रूरत है। तो ये लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग सेल्स भी करते हैं अपना प्रॉफिट बूस्ट करने के लिए, फिनेंशियल पोजीशन अच्छी दिखाने के लिए, कोई कोई करता है। अच्छा, तो इनका जो ट्रेडिंग सेल्स था ना वो 38% था, सेल्स का 38%, 30%, 31%, नीचे वाली स्लाइड में देखोगे आप, नीचे वाले इसमें कि 38%, 30 एंड 31% टोटल सेल्स का इतना परसेंट, ठीक है। तो मतलब ऐसा हो कि मेरा सेल्स जो बढ़ रहा है वो मेरे ट्रेडिंग सेल्स की वजह से बढ़ रहा है, तो पर मेरा ये मटेरियल जो कंजम्पशन हो रहा है उसका रेशियो ऑलमोस्ट सिमिलर हो रहा है मेरा। देखो 87%, 84, 85, 84, मेरा मटेरियल इतना कंज्यूम कैसे हो गया, अगर मैं ट्रेडिंग सेल्स ही कर रहा हूँ, मेरा गुड्स तो वहाँ से ही जा रहा है, तो वो कैसे हो गया। तो वो भी एक अर्ली वार्निंग सिग्नल। देखो मैन्युफैक्चरिंग वो कहाँ लेके गए वो मैन्युफैक्चरिंग को। दूसरा कि वो मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपेंसेस होता है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर रखा है उन्होंने, तो ये भी एक अर्ली वार्निंग सिग्नल है। दूसरा चीज़, ये ट्रेडिंग जो परचेस इन्होंने किया था ना, ये ट्रेडिंग सेल्स करने के लिए परचेस करते हैं, ठीक है, तो उसके इन्वॉइसेस का भी वेरिफिकेशन किया गया था इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा। तो क्या था कि टोटल जो 6,700 करोड़ का जो टोटल परचेस था ना ड्यूरिंग फ्रॉड पीरियड, ये जो फ्रॉड का पीरियड तो इन्वेस्टिगेशन के लिए उठाया गया था, तो उसमें से 1679 करोड़ मतलब 1700 करोड़ के अराउंड एक फैंसी शर्टिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो फैंसिंग शर्टिंग का परचेस दिखाया हुआ था इन्होंने कि भाई 1600 करोड़ का हमारा फैंसी ये है। अच्छा, अभी परचेस का जो इन्वेस्टिगेशन किया है, इन्वेस्टर्स वगैरह देखते हैं, ठीक है। तो एक तो पहली बात तो उसमें कोडिंग नहीं थी, डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लोचा हुआ था, ग्रेड नहीं डाला था, मतलब आप देखोगे ना फिक्टिशियस दिखता है वहाँ पे, क्योंकि देखो आप जेन्युइन अगर कोई भी परचेस करते हैं ना उसमें डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, वो मटेरियल का कोड रहता है, क्योंकि हम लोग कंपनी बड़ी कंपनी होती है ना उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि रॉ मटेरियल का कोड कौन सा है, वो कोड डाल के सिस्टम से पता कर सकते हैं सैप से कि भाई ये मटेरियल ये है, ये कोड डालूंगा तो ये मटेरियल है। वो कुछ भी नहीं था तो ट्रेस करना भी मुश्किल है कि वो कौन सा मटेरियल था ऑलरेडी। फिर था कि ये जो परचेस डॉक्यूमेंट होता है उसके साथ LR कॉपी, EV बिल वगैरह होना चाहिए। EV बिल तो अभी आया, तो LR कॉपी नहीं थी उसके साथ, क्योंकि उसका फिजिक अभी वो गुड्स हमने परचेस किया उसका प्रूफ क्या है, इनवॉइस तो खाली इनवॉइस है, वो गुड्स एक्चुअली में आया वो क्या होता है, एक LR कॉपी होती है, LR कॉपी और गुड रिसीट नोट होती है। जो पहले तो LR कॉपी और ट्रांसपोर्टेशन का LR कॉपी होता है बराबर, और जब गुड्स अपने प्रीमाइसेस में एंटर करता है एक GRN बनता है, गुड रिसीट नोट, वो दोनों नॉकऑफ होती है और परचेस ऑर्डर के साथ नॉकऑफ होता है तीनों चीज़, ठीक है, ये चीज़ होती है। फिर थर्ड एक चीज़ हुई थी कि ये जो परचेस का जो आइटम्स जो मेंशन किया था ना इनवॉइसेस में, वो अपने LC वाले में नहीं थी, क्योंकि मैंने बोला कि LC जब इशू होते है उसमें लिखा होता है कि ये डिस्क्रिप्शन का गुड है, ये गुड्स है, ठीक है। तो ये और उसमें दोनों में मिसमैच था, तो ये जो परचेस पूरा था ना वो पूरा फ्रॉडुलेंट था। अच्छा, अभी ये सारी चीज़ हो गई, इन्वेस्टिगेशन हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि इनकी भाई 375 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी
2018 में ये तभी उन्होंने अटैच कर दिया, और 2020 में भी और एक 18 करोड़ की और भी इन्होंने प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया ईडी ने, ठीक है। क्योंकि और तो क्या, अभी क्योंकि पैसा तो सिस्टम से बाहर लेके गए, अभी कर क्या सकता हूँ, मेरे पास और कुछ है नहीं, अभी मैं क्या करूँगा कि प्रॉपर्टी अटैच करूँगा, और तो क्या कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, क्योंकि देखो मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आपने फ्रॉड किया है ना तो पैसा निकालना मुश्किल है। अब उनकी प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा हेयर कट होता है। अभी समझ लो आपने एक मशीनरी लिया, ठीक है, एक मशीनरी लिया, वो भी टर्म लोन पे लिया। अब टर्म लोन पे 2 साल पेमेंट करो, 2 साल के बाद नहीं किया तो बैंक को क्या लॉस है, अभी 2 साल तक तो पेमेंट आया, उसके बाद नहीं आया तो मशीनरी को बेच दूंगा, तो मेरे को ज़्यादा लॉस नहीं होगा, क्योंकि मैं बेच चुका, थोड़ा पाएंगे, थोड़ा बहुत लॉस होगा मुझे। पर अगर फ्रॉड के केस में क्या करूँगा, मैंने मशीनरी नहीं ली, उसके पास पैसा नहीं है, तो मेरे को तो पूरा राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो ये बहुत ध्यान अभी गवर्नमेंट कर रही है, पर गवर्नमेंट एनपीए के से ज़्यादा उनको फ्रॉड केसेस पे थोड़े ध्यान रखना चाहिए कि फ्रॉड पे क्या कंट्रोल लेके आए। हालांकि अभी वो अच्छे मेजर्स लेके आए, जैसे वो लोग एजेंसी फॉर स्पेशलाइज मॉनिटरिंग लेके आए हैं। जैसे कि कोई भी कंपनी ने 250 करोड़ से ज़्यादा, मतलब 250 करोड़ से मोर का लोन लिया है, तो कंपनी में एक एएसएम जो एजेंसी फॉर स्पेशलाइज मॉनिटरिंग होते हैं ना, उसको बिठाना पड़ेगा, और कंपनी जो होगी वो पूरा ड्यू डिलिजेंस करेंगी, मतलब कैश फ्लो देखेंगी, फंड डाइवर्जन देखेंगी, मतलब पूरा एक फॉरेंसिक तो नहीं बोलूँगा मैं, लाइक फॉरेंसिक ऑडिट ऐसा ही होगा पूरा, कि पूरा वैसे ही एनालिसिस करेंगे जैसे बैंक को चाहिए। दूसरा भी एक और चीज़ लेके आए वो लोग कि अगर पहले क्या होता ना कि कैश क्रेडिट अकाउंट होता है, सीसी अकाउंट होता है, ठीक है, और एक करंट अकाउंट होता है। अभी सीसी में तो वो लोग मॉनिटरिंग करते हैं कि भाई एंड ड्यूज देखते हैं, कहाँ कहाँ पैसा गया, वो मॉनिटरिंग कर सकते हैं। बट क्या अगर सीसी को डेबिट मार के अगर करंट अकाउंट में पैसा लेके गया हो कोई कंपनी, सपोज मैं ए लिमिटेड हूँ, ठीक है, मैंने एसबीआई से 100 करोड़ का सीसी लिया हुआ है, सीसी मतलब कैश क्रेडिट, ठीक है, फंड बेस्ड। अब 100 वो लोग सीसी मतलब ऐसा नहीं कि कुछ टर्म लोन के जैसा, वो अकाउंट वैसे घूमते रहता है, क्रेडिट डेबिट होता रहता है, ठीक है। उसमें वो लोग रखते हैं एंड ड्यू सीए सर्टिफिकेट मांगते हैं 3-3 महीने में, 6-6 महीने में। अब क्या होता है कि यहाँ से पैसा सीसी से डेबिट होकर चला गया करंट अकाउंट में। अब करंट अकाउंट में कौन ट्रैक रखेंगे, वहाँ से वो लोग डाइवर्ट करते थे। करंट अकाउंट में पैसा लेके गए मेरे, ठीक है, वहाँ पे तो किसका मुझे, वो तो मेरा खुद का अकाउंट, मैं ही ऑपरेट करता हूँ, लेके चले गए वहाँ से पैसा, डाइवर्जन वहाँ से। तो उसको रोकने के लिए क्या किया कि जिसका भी सीसीओडी अकाउंट रहेगा ना, सीसी और ओडी, उनको करंट अकाउंट नहीं रखना है। जो भी ट्रांजेक्शन जो भी आपको करना है वो सीसी अकाउंट के करो, सीसी के थ्रू ही करो, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो ये बहुत अच्छा वेलकम मेजर्स है, और ऐसे मेजर्स कुछ और भी लाएंगे फ्रॉड को कंट्रोल करने के लिए। देखो फ्रेंड्स, मैं पहले तो सॉरी कहना चाहूँगा कि अब 1 साल के बाद मैं अब मेरा दूसरा वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा मैं बिज़ी था बड़े बड़े असाइनमेंट्स में, तो निकाल नहीं पाया मैं टाइम। बट आई विल ट्राई कि आई विल एट रेगुलर इंटरवल्स आई विल बी अपलोडिंग द वीडियोज़। ओके, सो आप भी मुझे कमेंट में बताइए कि कौन से केस स्टडीज़ आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में चाहिए। ओके, और मैं रेगुलर इंटरवल पे कुछ अच्छे अच्छे केस स्टडीज़ करूँगा जो बेसिक कंसेप्ट आपको समझाने के लिए भी ईजी रहेगा, और आप भी समझ जाओगे उनको, ठीक है, वही मेरा पर्पज़ है। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि नए नए और भी वीडियो डाल सकूँ। थैंक यू सो मच।